খাতায় কলমে এখনো লোকসভা নির্বাচনের প্রায় বছর খানেক বাকি, কিন্তু মঙ্গলবার হঠাৎই যেন দেশের দুই প্রান্ত থেকে লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দিল শাসক এবং বিরোধী শিবির। বেঙ্গালুরুতে কংগ্রেস সহ ২৬টি বিরোধী দল বৈঠক করে এবং ইন্ডিয়া জোটের কথা ঘোষণা করে, কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দিল্লি থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিরোধীদের পাল্টা নিশানা করে প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে ৫০% বেশি ভোট পাবে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ। মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে বিরোধী শিবিরের বৈঠক এবং জোট ঘোষণা বিজেপির ওপরে যে চাপ বাড়িয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতীতে অবিজেপি দলগুলির এমন জোট খুব একটা সাফল্যের মুখ না দেখলেও গত এক মাসে বিরোধী শিবিরে জোট বাঁধার তৎপরতা অনেকটাই সফল হয়েছে। বিশেষত বেঙ্গালুরুর বৈঠকের পর সে কথা বলাই যায়। তার উপরে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল আপের মতো দলগুলির সংঘাতও আপাতত দূর হয়েছে। এই মুহূর্তে বিজেপিকে হারাতে বিরোধীরা একাট্টা। তবে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে আসন রফার ফর্মুলা কি হবে সেটা খুঁজে বের করাই এখন বিরোধী শিবিরের মূল পরীক্ষা। বিরোধীদের জোট শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হোক না হোক, তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরতে এখন থেকেই ঝাঁপাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহরা। বিরোধীদের জবাব দিতেই তাই দিল্লিতে মঙ্গলবার শক্তি জাহির করতে এনডিএর বৈঠক ডেকেছিল বিজেপি নেতৃত্ব। সেখানে গত বিধানসভা ভোটে বিহারে মুখ থুবড়ে পড়া লোক জনশক্তি দলের নেতা চিরাগ পাসওয়ানকেও আলিঙ্গন করতে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। বার্তাটা পরিষ্কার, বিরোধীদের ভোট কাটতে পারবে এরকম ছোটখাটো দলকেও আপাতত দলে টেনে পাল্লা ভারী করার দিকে জোর দিচ্ছেন মোদী শাহ নাড্ডারা। বিশেষত যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি শক্তিশালী নয় সেখানে শরিকদের ওপর ভরসা করতে হবে মোদী শাহদের। মোদী উল্লেখ করেন, ২০১৪ পর দেশের উন্নয়ন দেখে ২০১৯-এ আরও বেশি মানুষ এনডিএকে ভোট দিয়েছে। 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। पूरे देश में हमारे अनेक साथी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। हम हर भूभाग, हर वर्ग, हर समाज को विकसित भारत के मिशन से जोड़ेंगे। क्रेडिट भी सबका है, दायित्व भी सबका है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है, 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। কর্ণাটকে ধাক্কা খাওয়ার পরই ২০২৪ নিয়ে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের পরে চিন্তার ভাঁজ বেড়েছে। প্রত্যাশিতভাবেই মুখে সে কথা স্বীকার করছেন না তারা। আবার কর্ণাটকের বিজেপি বিরোধী হওয়া এবার অন্যান্য রাজ্যেও তৈরি করা বিরোধীদের লক্ষ্য। বিজেপি বিরোধী ভোটকে এক জায়গায় নিয়ে আসায় এখন বিরোধীদের কাছে চ্যালেঞ্জ।
একদিকে নরেন্দ্র মোদী যখন বিরোধীদের জোটকে দুর্নীতিগ্রস্তদের ও পরিবারতন্ত্রের জোট বলে আক্রমণ করছেন, তখন বিরোধীরা জোটের নাম ইন্ডিয়া দিয়ে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে দেশকে ভাঙার অভিযোগে সরব হয়েছেন। हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ, पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. Save India from disaster. Save India from atrocious terrible. Save atrocious terrible from Manipur. Save the people of India. Save India, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। यही मेरे को कहने हैं। Thank you so much. I am grateful to all of the political party. They have accepted the slogans of India, this name, alliance. The main foundation we started from today. Next Maharashtra, the meeting will be there. There the core committee and the manifesto, the common minimum program or whatever you say, the joint committee, everything will be decided there also. So the meeting date, Khargeji will inform you later on. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks to Karnataka Congress Party also and government also to organize this meeting. Thank you so much. आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी। तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है।
आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी, आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेके हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक जमाने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है, तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था, मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है, और देश की जनता इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही। मैं खरगे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन अगली मीटिंग हम मुंबई में करेंगे। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। লোকসভা ভোটের কয়েক মাস আগে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। ফলে এই রাজ্যগুলির ফলাফল কি হয় সেদিকেও অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। সব মিলিয়ে গতকালকের পর 2024কে পাখির চোখ করে শাসক বিরোধী শিবিরের তৎপরতা যে আরও বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মঙ্গলবারের পর এই লড়াইকে এনডিএ বনাম ইন্ডিয়ার লড়াই বললেও ভুল হবে না। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।